Hello students, welcome back to Savan Science Academy in the new lecture of the topic that is organic chemistry's basic principle. So we were doing with the doing the IUPAC nomenclature of various organic substances. So in the last we saw about amines. So today we will see the organic substances which are known as ethers. चलो देखते हैं. So ethers first of all they are represented as ROR. अब बहुत सारे बोलते हैं functional group you have to consider as O, but it is more appropriate to call it कि to that oxygen at least one carbon on either sides should be joined. So specifically functional group it should be COC, means at least to this oxygen on both the ends carbon should be, because if that's not the case अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा तो ये पानी हो जाएगा. पानी तो ईथर है नहीं. So compulsorily that oxygen should be bounded or rather it should be bonded with the alkyl groups, at least one carbon. आगे फिर क्या लगे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन दोनों साइड कार्बन लगे. अगर एक साइड H हो गया तो ये अल्कोहल हो जाएगा OH. So remember this. So this is ether. Now ether की definition ही बोली जाती है ऐसे कि they are called as alkoxy derivatives. They are called as alkoxy derivatives of alkenes. They are called as alkoxy derivative of alkenes. मतलब simple, if alkane is RH and somehow if I can replace this H with OR dash. Now this is alkyl and oxygen, so alkoxy, we'll call it as alkoxy, and if you somehow replace this, so you will get alkoxy alkane, that is ethers. So that's its first definition. Then another definition is it is mono alkyl derivative. It's a mono alkyl derivative of मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल. ठीक है, मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का भी ये डेरिवेटिव पकड़ सकते हैं. मतलब एज वी ऑल नो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस वो अल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप है. इफ समहाउ आई कैन रिप्लेस दिस H with R dash I can get ether. So monoalkyl derivative of monohydric alcohols और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, ये उसका दूसरा डेफिनेशन बनता है. ये उसका एक डेफिनेशन है. ईथर्स आर डिफाइंड एज इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट. इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बड़े मोटे मोटे शब्द है, बट स्टिल इट्स क्वाइट इजी. समझा देता हूं. intermolecular dehydration product of monohydric alcohols. इसके ऊपर बेस्ड एक रिएक्शन भी हम लोग जब फिनॉल ईथर्स के रिएक्शन देखेंगे तब देखेंगे कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन करके है. सो इफ यू सी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर मैं लेता हूं लाइक दिस से, एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर. इंटर मींस बिटवीन two molecules if I dehydrated, मतलब कैसे भी निकालो, OH ये लेकर ये H ले सकते थे या H या OH. सो ये पानी निकल जाएगा, बचा हुआ प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा. सो आई कैन गेट ईथर. सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ ईथर. सो टेक्निकली ईथर्स की बात करें तो इस तरीके से हम ईथर्स बना सकते हैं. एक और दिया है उन्होंने डेफिनेशन मिलता है हमें. इट्स अ डायअल्किल derivatives of water. Water is HOH, we all know. If both the H are replaced by alkyl groups, so you can simply get ethers. So two same or different alkyl groups अगर है, so I can convert it into ether. So these are the four definitions. Exactly ज्यादातर importantly हम लोग ये दोनों को ज्यादा देखते हैं. सभी definitions है. So but basically ये दो हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं. So alkoxy derivatives of alkanes, monoalkyl derivatives of alcohol, intermolecular dehydration product of monohydric alcohols, and dialkyl derivative of water.
महाराष्ट्र सीईटी में ये एक बार एमसीक्यू में पूछा था विच वन इज द करेक्ट डेफिनेशन, तो कोई एक उन्होंने रॉन्ग दी थी, सो ये याद रख सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ईथर। सो जनरली अब हम इसके बारे में फटाफट चीजें देख लेते हैं। सो ये थी उसकी डेफिनेशन, हाउ ईथर्स आर फॉर्म्ड रादर और हाउ दे आर नेम्ड। सो अब थोड़ा उसी के बारे में हम देखेंगे नेमिंग में। नाउ इफ वी सी द जनरल formula, general molecular formula for ethers, normal ethers की अगर हम बात करें तो it is simple, it is CN, it is H2N plus 2O. This is the general formula for ethers, मतलब जो homologous series है उसका जनरल फॉर्मूला ये आएगा। देन IUPAC नेमिंग में, ठीक है, IUPAC नेमिंग में और हमने प्रायोरिटी में भी हमने देखा है, IUPAC नेमिंग में we generally write them as alkoxy alkanes। so alkoxy alkane ये उसका IUPAC नेम। अब ये कैसे लिखा जाता है वो भी ठीक से देखो। अब सपोज करो जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं ROR' where R' is suppose the larger। अब दोनों सेम रहे, मतलब दोनों ग्रुप सेम है, तो एक को अल्कोक्सी लिखो, एक को अल्केन। हम देखेंगे एग्जांपल्स देखने वाले, बट जनरली अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, सो यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट वंस। सपोज दिस वन इज लार्जर अल्किल, सपोज दिस इज द लार्जर अल्किल, तो याद रखो देन लार्जर अल्किल इज रिटन एज अल्केन। जो भी लार्जर अल्किल ग्रुप होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो दोनों साइड के चेन्स में जो लंबी होगी उसे हम अल्केन पेरेंट लेंगे। एंड ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ R, इसको जनरली ये स्मॉलर ग्रुप होगा। स्मॉलर अल्किल को हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे तो हम उसको अल्कोक्सी की तरह लिखेंगे। So we'll write this as alkoxy. We will consider the small group attached to the oxygen. So alkyl and oxygen we'll call it as alkoxy. So that will always include the smaller alkyl group. R dash which will be writing as the main chain as alkane will be the larger alkyl groups. That will be the R dash one. Common naming. अब हम हर एक की कॉमन नेमिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर अगेन इट फेल्स फॉर द हायर ईथर्स, हायर ईथर्स में ये फेल होगा, बट सेम एटलीस्ट लोअर ईथर्स में हम कॉमन नेमिंग दे सकते हैं। दे आर सिंपली कॉल्ड एज डाई अल्किल ईथर्स वेयर द अल्किल, बोथ द अल्किल ग्रुप्स, द नेम दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दोनों सेम रहे तो डाई अल्किल, अलग अलग रहे तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो अल्किल ग्रुप पहला, बाद में दूसरा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हम लोग एक एक सबका देखने वाले हैं। सो ईथर सबको समझाए, बाय डेफिनेशन वी नो इट इज अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और दे आर इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जनरल फॉर्मूला ये होता है, IUPAC नेम ये होता है जिसमें बड़ा अल्किल ग्रुप हमेशा अल्केन की तरह लिखा जाएगा, छोटा वाला अल्कोक्सी की तरह लिखा जाएगा। कॉमन नेमिंग इज डायल्किल ईथर एंड द नेमिंग शुड बी ऑफ द अल्किल ग्रुप शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ इसी पे से टाइप्स ऑफ ईथर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईथर तुरंत शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग सिंपल ईथर, या मतलब ये सिंपल कोई दूसरा नाम है दैट इज सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स ईथर्स, या इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी कहते हैं। सिंपल ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर्स और जिसे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सो नाम ही मीनिंग दर्शा रहा है। इफ बोथ द अल्किल ग्रुप्स ऑफ द ईथर आर सेम, जैसे डाइमिथिल ईथर, कॉमन नेम बता रहा हूं, हम हर एक का देखने वाले हैं। सो दोनों साइड अगर इथिल ब्रांचेस है सो डाइथिल ईथर, सो ऐसे वाले ईथर्स को हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। ऑब्वियसली डिसिमिलर अल्किल ग्रुप्स अगर है, सो वन साइड मिथिल अदर साइड इथिल, कुछ भी, सो इस तरीके से डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स ईथर्स, और जिन्हें हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर्स या सिमेट्रिकल ईथर्स भी बोलते हैं। तो सबको ईथर्स का बेसिक नॉलेज हो, सो सबको क्लियर होगा।
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज याद रखो, एंट्रेंसेस में क्वेश्चन पूछते हुए बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला CnH2n+2O। अब एक चीज और याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला इवन अल्कोहल्स को भी लागू होता है, बिकॉज अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के, हम आइसोमेरिज्म में ये देख लेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, जनरल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अलग है। मतलब इसी फॉर्मूला अगर मैं इधर 4 लिखूं, C4 4 2 C4H10O, तो इससे मैं अल्कोहल भी बना सकता हूँ, ईथर भी बना सकता हूँ, वो हम आइसोमेरिज्म में देखेंगे। बट याद रखना अल्कोहल इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, सॉरी फंक्शनल आइसोमर, ईथर्स और अल्कोहल्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ ईथर्स। नाउ चलो लेट्स मूव ऑन टू द IUPAC नेमिंग। सबको होप सो ये समझा है, लिख लेंगे या तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स आराम से। सो राइट दिस डाउन, डेफिनेशंस होप सो पहले लिख लिए होंगे। जनरल फॉर्मूला IUPAC नेमिंग, हाउ टू गिव दैट IUPAC नेमिंग, स्मॉलर ग्रुप अल्कोक्सी, बड़ा ग्रुप अल्केन, कॉमन नेमिंग है। टाइप्स ऑफ ईथर्स में सिंपल एंड मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल बोल सकते हो, सिंपल ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर, मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल, ये सब मतलब ये सेम है। सिंपल एंड सिमेट्रिकल मीन सेम, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स मींस द सेम। तो मिक्स्ड ईथर्स पकड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एंड एक और चीज याद रखने लायक है कि अल्कोहल्स और ईथर एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होते हैं, तो याद रखना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ऑफ ईथर्स। बाकी जब हम चैप्टर देखेंगे तब हम डिटेल में देख ही लेंगे। फिलहाल मतलब इनमें भी आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है मेटामेरिज्म, जो मेजॉरिटी पूछा जाता है बिकॉज बहुत कम फंक्शनल ग्रुप्स मेटामेरिज्म टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, जिसमें से ईथर्स एक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द IUPAC नेमिंग। सो हमें उसमें ही दिलचस्पी ज्यादा है। नाउ ज्यादा क्वेश्चंस तो वैसे आते नहीं है, इसलिए अगर स्टार्टिंग के बेसिक IUPAC नेम्स अगर आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो ROR तो सिंपल है, मैंने बताया था लार्जर ग्रुप, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लार्जर ग्रुप इज रिटन एज अल्केन, ठीक है, एंड दिस स्मॉलर अल्किल ग्रुप is written as alkoxy, तो ये दिमाग में रखो। कॉमन नेम्स भी हम लोग तुरंत देने वाले, एक एक देखेंगे स्टार्टिंग से। तो CH3O CH3, तो मिनिमम ईथर जो पॉसिबल है वो 2 कार्बन के, दोनों साइड मिनिमम एक एक कार्बन। सो इसको अगर मैं IUPAC नेम दूं, IUPAC नेम, तो ऑब्वियसली किसी एक को पेरेंट पकड़ लो तो दूसरे को हम लिखेंगे मिथॉक्सीमीथेन। हम इसे क्या लिखेंगे, मिथॉक्सीमीथेन। अगर सपोज इसको पेरेंट पकड़ा है तो ये ब्रांच, तो मिथॉक्सी एंड उसको लग कर आएगा मीथेन। यही अगर कॉमन नेम में नाम देना है, सो इट विल बी डाई मिथाइल। सो दोनों मिथिल्स, दोनों ग्रुप सेम है, सो आई कैन राइट इट कलेक्टिवली, एंड दिस O को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल बी राइटिंग ईथर। सो द नेम गोज एज डाइमिथिल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन। सेकेंड, सपोज CH3O C2H5 है, मतलब दिस इज रिटन एज CH2 एंड CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन अब दिख रही है, 2 कार्बन की है, तो ये अल्केन होगा, इसको अल्कोक्सी बोलेंगे। 1 2, सो नाम क्या आएगा इसका, 1 पे है, तो नंबरिंग 3 कार्बन ऑनवर्ड्स, लॉन्गेस्ट चेन जब 3 कार्बन की होगी तब से शुरू होती है। सो दिस इज मिथॉक्सी ईथेन। IUPAC नेमिंग शुड बी रिटन इन 1 कंटिन्यूअस वर्ड, तो जनरली वैसा होगा। एंड यही अगर अभी मुझे कॉमन नेम देना है, सो अल्फाबेटिकली E पहले आएगा, सो इथिल मिथिल ईथर। सो द नेम ऑफ दिस ईथर विल बी इथिल मिथिल ईथर। सो ये सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका और नेक्स्ट मेंबर देखेंगे हम लोग। सपोज है C2H5O C2H5, तो दोनों कार्बन सेम नंबर के हैं, तो हम समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज इथॉक्सी ईथेन, वी कैन राइट दिस एज इथॉक्सी ईथेन। और अगर कॉमन नेम लिखना है, सो वी कैन राइट डाई इथिल ईथर।
सो कॉमन नेम इसका क्या आएगा, डाइथिल ईथर। नेक्स्ट अगर थोड़ा भी हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलेंगे, सपोज CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। अब डरो मत, ब्रांच नहीं है ये, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही है। देखो लिखने का तरीका होता है, 3 कार्बन ऑनवर्ड्स अब थोड़ा नंबरिंग आएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, ये 3 कार्बन की है, ये 2, सो 1 and 2 and 3। 1 पे अल्कोक्सी लगा है, और अल्कोक्सी में अल्किल ग्रुप कौन है, 2 कार्बन, इथिल, सो हम इसे लिखेंगे इथॉक्सी। सो द IUPAC नेम गोज एज 1-ethoxy एंड ऑब्वियसली इट विल बी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रोपेन। एंड कॉमन नेम में इथिल, और इसकी शुरुआत N प्रोपिल होगी, तो N और E में E पहले आएगा, सो कॉमन सेंस N प्रोपिल ईथर। सो ईथर का कॉमन नेम होप सो समझ रहा है सबको। नेक्स्ट वन अगर हम जाए तो सपोज CH3O CH CH3 CH3, सपोज ये है अभी। अब ये वाला एक साइड ब्रांच है, एक साइड नॉर्मल है, तो वापस लॉन्गेस्ट चेन हम चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा बच्चों, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, नीचे से भी जा सकते हो एज यू विश। सो 2 पे अल्कोक्सी है, सो दिस विल बी 2, कौन सा अल्किल ग्रुप है, 1 कार्बन, सो द नेम गोज एज 2-methoxy प्रोपेन। ठीक है, 2-methoxy प्रोपेन। एंड अगर कॉमन नेम दे रहा है, सो दिस इज आइसोप्रोपिल, दिस इज मिथिल। सो अल्फाबेटिकली जाओगे तो आइसोप्रोपिल मिथिल, अल्फाबेटिकली लिखने बोला है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ईथर। ठीक है, चलो तो होप सो ऐसे तुम लोग नाम दे सकते हो। तो अगर सपोज अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अभी अपन कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ते चलेंगे। CH3 this will be it and this will be OC2H5। सो अभी लॉन्गेस्ट चेन तुम देख रहे हो कौन सी है, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है जिसके सेकंड पे ये लगा है, सो दिस विल बी नेम्ड एज 2-ethoxy एंड दिस विल बी ब्यूटेन। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, और रहेगा तो सेक ब्यूटिल होगा अगर हम कॉमन नेम देने जाए। सो दिस विल बी इथिल, देन इट विल बी सेक ब्यूटिल। ठीक है, ईथर, बिकॉज सेकेंडरी इसको लगा है, सो सेक ब्यूटिल ईथर। सो दिस आर सम ऑफ द ईथर्स जो कॉमनली तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में एंड ज्यादातर एंट्रेंसेस के जब केमिकल रिएक्शंस उनको किसी के बारे में पूछने हैं तो जनरली ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इतने भी बेसिकली लर्न है तो भी काफी है। अब हम आगे सिर्फ IUPAC नेम देखेंगे, अब थोड़े हम कॉम्प्लेक्स ईथर्स देखने वाले हैं। यहाँ तक होप सो सबका हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो एंड जल्दी जल्दी लिख लो ये। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस डाउन हाउ टू गो विद दिस। IUPAC नेम होप सो क्लियर होना चाहिए। अब बहुत बच्चे होते हैं जिनको एस्टर और ईथर में कंफ्यूजन होता है। सिंपल, सिर्फ O देखो है क्या, एस्टर में C डबल बॉन्ड O होगा और R डैश और R। सो वो बेसिक डिफरेंस है, याद रखो, मिस्टेक मत करो। प्लेन O है तो उसको 2 अल्किल ग्रुप्स, ईथर्स, सिंपल एज दैट, एंड ये उसका IUPAC नेमिंग होता है। समझा है सबको? सो लेट्स मूव टू सम मोर एग्जांपल्स एंड फिर होप्सो ये हो जाएगा अपना। सो आगे फिर हम अल्कोहल्स, इसी का फंक्शनल आइसोमर जो है वो देखेंगे। सो नेक्स्ट वाला जो होगा अल्कोहल होगा। नेक्स्ट वन हम जब देखेंगे, सब चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला हम लेने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो डायरेक्टली अब थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा देते हैं। अब सपोज करो दोनों साइड ब्रांचेस है, ये मैंने एक साइड ब्रांच लिया था, एक साइड नॉर्मल था, अभी ये है लिया तो डायरेक्टली अपन ने टफ ही लिया है। सो फर्स्ट रूल तो वही है कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। तो अगर यहां से जाते हो तो 1 2 3 4 की लॉन्गेस्ट चेन है, जबकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 की ही हो सकती है। तो कॉमन सेंस दिस इज ब्रांच, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब ये बनेगा अल्कोक्सी। अब देखो अल्कोक्सी में भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो रूल तो वही है, इसको लग के जो आया हुआ कार्बन है 1 2 3, तो 2 पे मिथिल। अब ओरिजिनल, ये पूरा ब्रांच कहाँ लगा है, तो ओरिजिनल चेन के सेकंड पे,
सो दिस विल बी 2 ब्रैकेट, ठीक है। देन इसमें 1 2 3 2 पे मिथिल है, सो दिस विल बी 2 मिथिल। देन लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, सो दिस विल बी प्रो। नाउ प्रोपिल हमें लिखना चाहिए, बट दिस इज ऑक्सी, सो इट इज प्रोपॉक्सी, सो इट विल बी 2 ब्रैकेट 2 मिथिल प्रोपॉक्सी, ठीक है। 2 मिथिल 2 ब्रैकेट 2 मिथिल 2 प्रोपॉक्सी, एंड दिस विल बी ब्यूटेन। दिस विल बी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सो इन दिस वे यू कैन राइट इट। साइक्लिक अगर आया तो हमने पढ़ा है कि ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लगेगा, ठीक है। सो सपोज करो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OC2H5। चलो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है। अब कैसे करोगे ना? पहली बात ऑब्वियसली ये कोई मेन डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप में हमने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट देखी है, उसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि ये कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स में से एक तो है नहीं। सो इसको अभी ब्रांचेस को तुम्हें देखना है। अगर तुम इसको 1 और इसको 2 दोगे तो 1 2 2, तो लोकन रूल के हिसाब से 5 टोटल आती है 1 2 2, जबकि यहां से जाओगे 1 1 2 तो 4 आता है। सो यू हैव टू फॉलो द लोएस्ट लोकन रूल। सो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, बट लिखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सिंपल सी बात है, इट विल बी 2 इथॉक्सी, क्योंकि एक ग्रुप है। अब ये मिथिल डाइमिथिल लिखेंगे, बट ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, सो याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग D नहीं देखेंगे, हम लोग M देखने वाले हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं है जिसका D देखा जाए, तो ये M देखेंगे। सो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथिल, एंड द लॉन्गेस्ट इज द साइक्लोपेंटेन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 2 3 4, एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक मिथॉक्सी है CH2, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक 3 की चेन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अब इसका नाम क्या होगा? अब फर्स्ट ऑफ ऑल वापस रूल हमें फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन, तो अब इसको पकड़ना पड़ेगा बिकॉज इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, इस रिंग के पास एक ही है डबल बॉन्ड। सो ऑब्वियसली दिस इज द प्रेफर्ड वन। नंबरिंग वो साइड से ताकि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर, ठीक है। तो ये तो डबल बॉन्ड प्रेफर्ड है एक्चुअली, बट दोनों साइड से वो 2 पे आ रहा है, सो द नेक्स्ट प्रेफर्ड विल बी अल्कोक्सी। अब बाकी तो नाम देना है, ये मिथॉक्सी का M आएगा, ये C आएगा, तो इसका नाम कैसे होगा? सो पहले मेन चेन के 3rd कार्बन को ये रिंग है, सो 3 ब्रैकेट, सो दिस विल बी साइक्लोप्रोप, बिकॉज रूट वर्ड इज प्रोप। सो इसमें अब यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज 1 and 2 and 3, या 1 2 3 या 1 2 3 कैसे भी जाओ, सो दिस विल बिकम एज साइक्लोप्रोप 2-ene, एंड दिस इज अ ब्रांच, सो दिस विल बी आइल। सबको समझाइए कैसे लिखा है? 3 पे साइक्लोप्रोप 2-ene आइल, देन 1 पे मिथॉक्सी, 1 पे मिथॉक्सी, एंड लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, so this will be but2-ene, ठीक है। this will be but2-ene। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, that is suppose CH2OH है और इधर OCH3 है, तो अब क्या नाम लिखोगे? नाउ दोनों फंक्शनल ग्रुप में डोमिनेंट अल्कोहल है, सो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये लगेगा, ये तो सेकेंडरी सफिक्स में लगेगा, ये प्रीफिक्स में ही आएगा हमेशा। सो द नेम विल बी रिटन एज 2-methoxy, लॉन्गेस्ट चेन 2 की है, एंड दिस विल बी रिटन एज इथेनॉल, 1 ऑल, क्योंकि 1 पे ऑल है, 2 पे मिथॉक्सी है। सो डोमिनेंट ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है, सो उसका लिखा जाएगा एज इथेनॉल, एंड ये जाएगा ब्रांचिंग में या रादर प्रीफिक्सेस में। तो ये हमेशा प्रीफिक्सेस में ही होगा, वो खुद डोमिनेंट रहे तो भी प्रीफिक्स में ही आएगा, वो उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो भी वो प्रीफिक्स में आएगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखने वाले हैं। तो होप सो ईथर्स सबको समझा स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल,
hit the bell icon for further notifications, share it with your friends, comment on it.